শ্রীরূপ মঞ্জরি পদ সেই মোর সম্পদ। শ্রীরূপ মঞ্জরি পদ সেই মোর সম্পদ। সেই মোর ভজন পূজন। সেই মোর ভজন পূজন। শ্রীরূপ মঞ্জরি পদ সেই মোর সম্পদ। সেই মোর প্রাণধন সেই মোর আভরণ। সেই মোর প্রাণধন সেই মোর আভরণ। সেই মোর জীবনের জীবন। সেই মোর জীবনের জীবন। শ্রীরূপ মঞ্জরি পদ সেই মোর সম্পদ। শ্রীরূপ মঞ্জরি পদ সেই মোর সম্পদ। সেই মোর রসনিধি সেই মোর বাঞ্ছা সিদ্ধি। সেই মোর রসনিধি সেই মোর বাঞ্ছা সিদ্ধি। সেই মোর বেদের ধরম। সেই মোর বেদের ধরম। সেই ব্রত সেই তপ সেই মোর মন্ত্র জপ। সেই ব্রত সেই তপ সেই মোর মন্ত্র জপ। সেই মোর ধর্ম করম। সেই মোর ধর্ম করম। শ্রীরূপ মঞ্জরি পদ সেই মোর সম্পদ। অনুকূল হবে বিধি সেই পদে হইবে সিদ্ধি। অনুকূল হবে বিধি সেই পদে হইবে সিদ্ধি। নিরখিব এ দুই নয়নে নিরখিব এ দুই নয়নে। সেরূপ মাধুরী রাশি প্রাণ কুবলয় শশী। সেরূপ মাধুরী রাশি প্রাণ কুবলয় শশী। প্রফুল্লিত হবে নিশিদিন। প্রফুল্লিত হবে নিশিদিন। শ্রীরূপ মঞ্জরি পদ সেই মোর সম্পদ। তোমার দর্শন
ভুয়া দর্শন করলে জারণ চিরদিন তাপিত জীবন চিরদিন তাপিত জীবন হা হা প্রভু করো দয়া দেহ মোর পদ ছায়া আহা প্রভু করো দয়া দেহ মোর পদ ছায়া নরোত্তম লইল শরণ নরোত্তম লইল শরণ শ্রীরূপ মঞ্জরি সেই মোর সম্পদ শ্রীরূপ মঞ্জরি পদ সেই মোর সম্পদ সেই মোর ভজন পূজন সেই মোর ভজন পূজন শ্রীরূপ মঞ্জরি পদ সেই মোর সম্পদ। Thank you, Neil Madhav. Happy New Year to you. Thank you for your Vaishnava Seva. Hare Krishna. Okay. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuranmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Sopadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatapadakamlam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukham Karoti Vachalam Bangum Langayate Girim Yatkripadamaham Vande Shri Gurum Dinataranam Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Shrilaropada Swami Iti Namine Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare. Okay, I'm just going to share the screen. Turn off my video here. Devamira, are you in a position to read or should I ask Nitai Chand to read? Yeah, I'm still driving till 15-20 minutes away from home. All right, okay. Let's Nitai Chand, are you in a position to read or you're doing something else?
Yes, Prabhuji. Are you stable in one place? Just give me 2 minutes. I'll just point to my laptop. You don't. Okay, right. Right. ठीक है, all right. Let's see तब तक calculate. So December 31st, 2025, आखिरी दिन साल का, श्री बृहद भगवतामृत पेज नंबर 315। तो अब जो है नारद मुनि जो है किम पुरुष वर्ष आ चुके हैं। अब नारद मुनि जो है हनुमान का जो है गुणगान जो है खुद अपने मुख से कर रहे हैं। इसके पहले हमने सुना प्रहलाद ने क्या कहा उनके बारे में। अब जो है नारद मुनि जो है उनका गुणगान कर रहे हैं। तो ये श्लोक हमने कल पढ़ा है, बट एक और बार देख लेते हैं। 314 पेज आखिरी में। दासः सखा वाहनम आसनम ध्वज छत्रम पितानाम व्यजनम च वंदी मंत्री भीषग योधपति सहाय श्रेष्ठ महाकीर्ति विवर्धनश्च। तो ये सब अलग अलग तरह से जो है हनुमान के जो लक्षण जो है, उनके कार्य, उनके गुण लीला का वर्णन हो रहा है यहाँ पर। आप भगवान के सेवक हैं, यू आर द लॉर्ड सर्वेंट। उनके सखा हैं, उनके वाहन हैं, उनके आसन हैं, उनकी ध्वजा है, उनके छत्री हैं। ये कैनपी का मुझे पता नहीं, बट उनके पंखा। यू आर हिज बार्ड। बार्ड मतलब जो उनकी गाथा गाते हैं हनुमान, भगवान की गाथा गाने वाले या लोगों की गाथा गाने वाले को बार्ड कहते हैं। हिज एडवाइजर, उनके मंत्री हैं, उनके वैद्य हैं, उनके सेनापति हैं, उनके श्रेष्ठ सहायक हैं, और उनके कीर्ति वर्धन के निमित्त है वो। ये सब हमने कल पढ़ा सुना। अब आगे बढ़ते हैं। 15। Prabhuji, I can read now. Can you see the screen? Yes, I can see this one. Okay, so just read translation पहले, then I'll then pause, then थोड़ा थोड़ा purport पढ़ें, pause करेंगे, then go ahead. Having surrendered yourself entirely to the Lord, having received His highest mercy, having dedicated your life to topics of His transcendental glories, you always increase the bliss of the devotees sheltered by Him. You are the best of saints, greater than even than others like Garuda. नारद मुनि ये कह रहे हैं कि आप पूरी तरह भगवान के शरणागत हैं। हैविंग सरेंडर्ड योरसेल्फ एंटायरली टू द लॉर्ड, पूरी तरह शरणागत हैं, भगवान की सर्वोच्च कृपा के पात्र हैं। आपने अपना जीवन जो है भगवान के श्रवण नाम रूप गुण लीला के श्रवण कीर्तन को समर्पित कर दिया है, मतलब आपने जीवन को न्यौछावर किया है। आप जो हैं भगवान पे जो आश्रित हैं, भगवान पे जो शरणागत हैं, उनका उनका उत्साहवर्धन, उनका उल्लास बढ़ाते हैं। ऑलवेज इंक्रीज द ब्लिस ऑफ द डिवोटीज शेल्टर्ड बाय हिम। तो मतलब आप भक्तों के प्रिय हैं, आप भक्तों का उल्लास बढ़ाते हैं। द बेस्ट ऑफ सेंट्स, आप साधुओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। गरुड़ से भी आप ग्रेटर इवन देन अदर्स लाइक गरुड़ा, गरुड़ से भी आप महान हैं, साधु हैं, ऐसा कह रहे हैं नारदा। ओके, गुड, गुड। Prabhuji, should I read the whole puppet or like small parts?
just maybe one sentence, long sentences हैं, so just see maybe read 3-4 sentences. Go ahead. If they are short, if they are long, then just read one or two. Go ahead. Hanuman employed all his senses and abilities in Lord Ramchandra's service. Nothing was dear to him but that service. He had no attachment to his body or anything related to his body, but the pure glories of his Lord Rama he cherished more than even life itself. That's good. That's good. तो ये okay. तो ये जो है अब कह रहे हैं, क्योंकि एक जो पहला जो कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी तरह भगवान को समर्पित किया था, पूरी तरह उनकी सेवा में समर्पित थे हनुमान। तो अब सेवाएं एक व्यक्ति किन 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 से करता है? अपनी इंद्रियों से करता है, अपने मन से करते हैं, हृदय से करते हैं, मन बुद्धि सबको। इहा यश हरे दाशे कर्मणा मनसा गिरा। तो इस तरह कह रहे हैं हनुमान जो है, ये एम्प्लॉयड ऑल हिज सेंसेस, उनकी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, सारी उनकी कुशलताएं, जो भी उनके पास थे कुशलताएं, वो सब भगवान रामचंद्र जी की सेवा में उन्होंने लगाया। तो हमारा भी यही उद्देश्य है। ऑफ कोर्स हम हनुमान जितने, जैसे महाराज बोलते हैं, वी आर डल इंस्ट्रूमेंट्स, शार्प नहीं है हम लोग इतने, मतलब धार जो है हमारी नहीं है इतनी निमित्त के होने की भी। तो जो भी हैं हम, जैसे भी हैं, निमित्त हैं हम, डल शार्प, और जो भी भगवान ने दिए हैं काबिलियतें कुशलताएं, तो उनको जो है भगवान की सेवा में प्रयोग करें। लेकिन एक बार ऐसे ही गुरु महाराज से कुछ बातें हो रही थी, तो समझो कौन सी भाषाएं मैं जानता हूँ, इसका कुछ था, कुछ चर्चा। तो कोर्स क्योंकि मैं दक्षिण भारत से हूँ तो मैं तेलुगु जानता हूँ, और फिर क्योंकि बड़ौदा में पला, हिंदी इंग्लिश तो है ही, और क्योंकि बड़ौदा में था गुजराती भी थोड़ी बहुत आती थी मुझे, आती है। तो महाराज जैसे उसी परिप्रेक्ष्य में जब उनको पता चला कि वो मेरे को थोड़ी गुजराती भी आती है, तो कहा ओके, यूज इट और लूज इट कर गया। मतलब ओके, थोड़ी गुजराती आती है तो उसका उसका प्रयोग करो कृष्ण भगवान की सेवा में, उसको प्रयोग करो, या फिर उसको खो दो, लाइक दैट। तो कुछ अभी तक गुजराती में प्रचार नहीं किया है अभी तक बट एनीवे, तो महाराज ने कहा था, मतलब जो भी हो, छोटी सी चीज़ हो, बड़ी सी चीज़ हो, उसको भगवान की सेवा में हम लगाएं, नहीं तो वो मतलब निरर्थक है, वो खत्म हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। नथिंग वॉज डियर टू हिम बट दैट सर्विस। और वो कह रहे हैं कि हनुमान को जो है उस सेवा से के अलावा जो है, सेवा उनके लिए जो है, सेवा जो है वो सबसे सर्वोपरि था, उससे ऊपर कोई चीज थी नहीं उनके लिए। और जैसे हम समझते भी हैं, हनुमान, जैसे भागवतम का श्लोक था उस दिन प्रहलाद महाराज बता रहे थे, तो हनुमान ने जो है दास्य रस में जो है ये अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त की है। और ये दास्य रस, जैसे उस दिन भी हमने पढ़ा था, दास्य रस मतलब सिर्फ अपने अपने पास जो है अ, धन संपत्ति वगैरह वो अपने स्वामी को देना, ऐसा नहीं है सिर्फ, लेकिन अपना सारा तन मन धन शरीर सब कुछ जो है भगवान को या स्वामी को देना। Nothing was more dear to him than that service. He had no attachment to his body or anything related to his body. तो तो हम लोग सेवाएं करते हैं, लेकिन उस हद तक ही जाते हैं कि शरीर को ज्यादा कष्ट ना हो। और शरीर की आवश्यकताएं पर भी जो है काफी हमारा वो ध्यान रहता है। कोर्स प्रभुपाद ने कहा है कि शरीर जो है ये आत्म साक्षात्कार का एक वाहन है, एक निमित्त है, तो इसको ढंग से रखना भी जो है भगवान की सेवा में, ये भी हमारी सेवा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि या शरीर को सुसर्जित करने में, उसको सुशोभित करने में जो है काफी समय जो है जाता है। लेकिन जैसे भगवद गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य, तो एक सही प्रॉपर मात्रा में शरीर का ध्यान भी रखना चाहिए।
इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कि हम इंद्रिय तृप्ति को हम बढ़ा सकें, बट भगवान की सेवा जो है वो ढंग से हो। क्योंकि अगर फिर हम शरीर का ध्यान हम नहीं रखते हैं तो फिर काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस खड़ी हो जाती हैं। खुद तो सेवा कर ही नहीं सकते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन फिर हमें फिर सेवाएं जो है अन्य वैष्णवों से फिर लेने पड़ते हैं। और फिर उनकी जो सेवाएं, जो अन्य सेवाएं जो रहती हैं एक तरह से, उनमें फिर कुछ बाधाएं आती हैं। ठीक है, वैष्णव सेवा भी इम्पोर्टेंट है, तो लेकिन इस तरह जो है ये शरीर जो है ये भगवान ने दिया है, इसको भगवान की सेवा में इसको लगाना चाहिए। तो उस हद तक जो है हमें अपने शरीर का ध्यान डेफिनेटली रखना चाहिए। लेकिन हनुमान कह रहे हैं कि उनको या उनकी जो शारीरिक आवश्यकताएं थी वो सब उनके उनके परे थे। जैसे हम लोग आजकल बातें कर रहे हैं नीड्स के बारे में, या द बॉडी हैज नीड्स, बट देन जब कोई ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे जब वो शरीर के धरातल पर वो है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल, तो व्यक्ति जो है आत्मा के धरातल पर अगर वो अपना जीवन का संचालन कर रहा है तो वो शारीरिक आवश्यकताओं के बारे में इतना में वो उलझ नहीं जाता है वो व्यक्ति। बट हम लोग वी कांट इमिटेट, हम लोग इसको इसका अनुकलन के अनुकरण अनुसरण करना चाहिए। इस अनुकरण नहीं कर सकते हम लोग सस्टेन भी नहीं कर पाएंगे, हम लोग कोशिश भी करेंगे तो भी एक दो दिन के बाद हम ठप हो जाए। तो नहीं, तो इस तरह कहने के हनुमान जो है या शरीर था उनका, लेकिन मानो ये शरीर उनका था नहीं। जैसे सनातन गोस्वामी की लीला में भी है, एक बार जब सनातन गोस्वामी सोच रहे थे, क्योंकि उनके शरीर में ये सब कुछ कुछ बहुत सारी चीजें हो गई थी और महाप्रभु उनको बार बार जो है आलिंगन कर रहे थे, तो वो सोच रहे थे कि क्या ये बहुत दयनीय स्थिति है मेरी, मैं ऐसा करता हूँ मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। तो लेकिन महाप्रभु ने समझ लिया कि सनातन गोस्वामी का क्या प्लान है। तो कह रहे नहीं, आप क्या सोच रहे हैं, ये शरीर आपका है, शरीर आपका नहीं, ये शरीर मेरा है। और मेरे बहुत सारी योजनाएं हैं, मेरी कुछ मेरे प्लान्स हैं इस शरीर के माध्यम से, क्या क्या सेवाएं मैं चाहता हूँ आपसे। तो है मेरे कुछ अपेक्षाएं हैं, मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, मेरी प्लान्स है, योजनाएं हैं मेरी। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही तो ये शरीर जो है या भगवान का है, हम लोग समझते हैं कि ये हमारा है, लाइक दैट। और फिर शरीर से जो उत्पन्न होते हैं वो सब चीजें भी, तो शरीर से उत्पन्न होते हुए जो चीजें हैं, मतलब हमारा काम, हमारे बच्चे, तो ये सब जो है हनुमान तो खैर नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, बट हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है उस तरह भगवान की सेवा में देखना सब चीजों को। They all know they're on the right. Right. Exact house. With the exact layout. There's another stage. The back. अब कुछ गेस्ट आए हुए हैं हमारे घर, गंगा नारायण प्रभु की फैमिली आई। ओके, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट सेंटेंस, गो अहेड प्रभु। Had he been deprived of hearing and chanting those glories while separated from his Lord, he would have died an instant death. Indeed, it is well known that wherever Ramakatha is recited, Hanuman comes to listen. एक He मिनट, may. एक मिनट, Okay. एक मिनट। सॉरी, मैंने हाँ तो उसके बाद एक वाक्य, एक सेंटेंस का मैंने अनुवाद या नहीं कहा था कुछ। हाँ, ये कहने के, लेकिन भगवान की जो शुद्ध शुद्ध कथाएं जो हैं वो उनके प्राण थे, प्राण से भी अधिक प्रिय थे, उससे अधिक प्रिय उनको कुछ नहीं थे। तो शरीर नहीं था प्रिय, सेवा प्रिय था। लेकिन कह रहे कि सेवा से भी फिर भगवान की जो गाथाएं जो हैं, उनकी श्रवण, उनकी गाथाओं का श्रवण या गाथाओं का कीर्तन, तो ये उनके प्राणों से भी ज्यादा था वो। तो सेवा, नाना तरह के प्रैक्टिकल सर्विसेज वो भी, और फिर ये श्रवणम कीर्तनम भी सेवा है। Had he been deprived of hearing and chanting those glories while separated from his Lord, he would have died an instant death. ये तो कह रहे हैं, अगर ये श्रवण कीर्तन का उनके पास, या अगर ये अवसर नहीं होता,
ये गंधर्वों का श्रवण कीर्तन करना, गंधर्वों के साथ श्रवण कीर्तन करना, अगर ये नहीं होता तो ये अपने आप को जीवित ही नहीं रख पाते। तो ये जैसे शरीर को जो है चलायमान आत्मा करता है, तो ऐसे कह रहे हैं कि ऐसे ही जो है ये जो खुराक जो है उनके लिए जो है कृष्ण कथा था उनका खुराक। ये वो तुरंत जो है वो मर जाते अगर उनको ये अवसर नहीं मिलता या नहीं कर पाते वो श्रवणम कीर्तनम। इट इज वेल नोन दैट wherever राम कथा इज recited हनुमान comes to listen। तो ये प्रख्यात है, सब लोग जानते हैं कि जहां पर भी राम कथा होती है वहां पर हनुमान जी आते हैं सुनने के लिए। तो सुंदराकांड इत्यादि जहां पर भी होता है, तो इस यही यही चेतना से सब लोग करते हैं एक्चुअली, कि हनुमान आते हैं ऐसे कथाओं को सुनने के लिए। Go ahead. He makes every endeavor to increase the bliss of Lord Ramchandra's devotees, both in ancient times and today. Among the Supreme Lord's personal attendants, Hanuman is the most glorious, even greater than Garuda. एक मिनट, हाँ। तो ये अब ही मेक्स एवरी एंडेवर, तो वो हर तरह से कोशिश करते हैं कि भगवान के जो भक्त जो हैं उनका उनका आनंद जो है वो बढ़ाएं। right? जैसे हम लोगों ने अभी ये बृहद भगवतामृतम में पढ़ा था पहले कि जो वैष्णव वैकुंठवासी जो हैं ये जो है इधर उधर जो है वो भ्रमण करते हैं। किस लिए भ्रमण करते हैं? जो भक्तगण जो हैं उनका उत्साह वर्धन करने के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो इसी तरह ये कह रहे हैं कि जो भगवान के जो भक्त हैं उनका जो है उल्लास जो है बढ़ाने के लिए कोई भी कोशिश जो है हनुमान जो है उसको पीछे नहीं छोड़ते हैं। और जैसे हम देखते हैं भक्तों को क्या पसंद है, भक्तों को आप देखो, आप सब कुछ दे दो। जैसे वो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं ना, मछली मछली पानी में है और वो खुश है, और पानी के बाहर उसको निकालो और उसको कुछ भी दो आप, समोसे दो, ये दो, वो दो, खेलने के लिए खिलौने दो, कपड़े दो, जे, जेवर दो, तो वो खुश नहीं है। उसको जस्ट पानी में डाल दो वापस तो वो खुश है। तो ऐसे ही जो वैष्णव जो हैं उनको जो है खुश रखना है, तो जैसे प्रभुपाद ने कहा मतलब श्रवणम कीर्तनम का प्रबंध हो अच्छी तरह, और ऑफ कोर्स प्रसादम, सेवाएं कुछ उनके लिए, कुछ सेवाएं, तो द वैष्णव आर हैप्पी। तो श्रवण के अपॉर्चुनिटीज हों, तो श्रवण करने का अवसर हो, कीर्तन करने का अवसर हो भगवान का, वैष्णवों का संग हो, प्रसाद हो, बस। तो इस तरह, तो ये मतलब डिवोटी केयर की जो सर्विस जो है, पालन पोषण जो है, तो अगर हम बाकी और सारी चीजें करेंगे, लेकिन अगर हम लोग ये नहीं करेंगे, घूम फिर के जो है बात नहीं बनेगी। तो भक्तों का पालन पोषण का आधार भी जो है वो है श्रवण कीर्तन, वो है आधार, बेसिस जो है। तो वो हनुमान जो है भली भांति जानते हैं कि भक्तों को प्रसन्न करना है, तो बढ़िया सा कृष्ण कथा, कृष्ण प्रसादम, कृष्ण कीर्तन, और उसमें वो खुश रहते हैं। हम्म, yeah. तो ही मेक्स एवरी एंडेवर टू इंक्रीज द ब्लिस ऑफ लॉर्ड रामचंद्र डिवोटीज। और कुछ जैसे मैंने कहा, सेवाएं करने का मौका, साथ में मिलजुल के सेवाएं करना। और वो प्राचीन काल में भी ये सब करते थे और आज भी करते हैं। वो प्राचीन काल में भी करते थे हनुमान, और अभी भी करते हैं। और भगवान के सारे जो संगीगण जो है परिकर हैं, उनमें से जो है हनुमान जो हैं ये गरुड़ से भी महान माने जाते हैं। क्या, हनुमान इज द मोस्ट ग्लोरियस, इवन ग्रेटर देन गरुड़ा। अब ये जो है यमुनाचार्य ने ये कहा है, आई थिंक ये उसका उनका एक श्लोक है, या The exalted यमुनाचार्य। Vaishnava Yamunacharya Alabandaru says, Dasa Sakha Vahanam Asanam Dhvajo Yaste Vitananam Vyajanam Traimayah Upasthitam Te Puratu Garutmata Tvat Angrihi Samar Dakinaka Shobhinaha. You वेरी गुड। Hanuman. एक मिनट, लोग देखा ये पहले दो पंक्तियां जो है ऑलमोस्ट जो सनातन गोस्वामी का जो श्लोक था ऊपर, राइट, ऐसे ही है। Yeah.
दासः, या वही वही चीजें कह रहे हैं, या Yeah, दिख correct. रहा है? इससे हम देख सकते हैं एक आचार्य दूसरे आचार्यों की स्तुतियों को भी का भी प्रयोग करते हैं अपनी कथाओं में। सॉरी, कहाँ चला गया मैं, आगे कहीं पर चला गया। इधर, सॉरी, हाँ, ओके, बट धन्यवाद। You, Hanuman, are the Lord's servant, friend, carrier, seat, flag, canopy, and fan. You embody the three Vedas. Even in the presence of Garuda, you are graced with honor of massaging the Lord's feet. तो ऑलमोस्ट श्लोक पहले दो पंक्तियां वही हैं, या दासः सख वाहनम आसनम ध्वजो यस्ते विथाननाम व्यजनम त्रयोमयः त्रयीमयः, ये तीनों चीजें। तो यू हनुमान द लॉर्ड्स, आप भगवान के दास हैं, उनके सखा हैं, उनके वाहन हैं, उनके आसन हैं, उनके ध्वज हैं, उनके पंखा, कैनपी। आप जो है ये तीनों गुणों, सॉरी तीनों वेदों के मूर्तिमान हैं आप, यू आर द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द थ्री वेदस। और गरुड़ के होते हुए भी जो है आपको जो है भगवान के चरण कमलों को क्या 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 मसाज या उनके पैर दबाने का जो सेवा जो है गरुड़ के उपस्थिति में भी जो है आपको जो है ये मिलता है। तो स्तोत्र रत्न श्लोक 41, तो यमुनाचार्य का ये बहुत ही फेमस कमेंट भी है, कॉम्पोजिशन है स्तोत्र रत्न, आई थिंक उसके 41वें श्लोक में है ये। ओके, कीप मूविंग अलोंग, 1116, गो अहेड। Indeed, your devotion for the Lord is absolutely pure, for you consider nothing more valuable than the pleasure of serving Him. You delighted all His devotees by speaking to that best of generous Lord these words. एक मिनट। तो ये कह रहे हैं वास्तविकता में जो है आपकी भक्ति जो है भगवान के प्रति वो बिल्कुल विशुद्ध है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है, अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। यहाँ फिर भजनीय सुख मात्र स्वसुखत्वम, तो यहाँ पर वही है कि भजनीय सुख मात्र स्वसुखत्वम, मतलब भगवान की सेवा, भगवान का सुख जिनका हम भजन कर रहे हैं उस उनकी सेवा से सर्वोपरि कुछ नहीं है, उनकी सेवा में ही मेरा सुख है। भजनीय सुख मात्र स्व, मतलब मेरा सुख जो है भगवान को संतुष्ट करने में है, भगवान की सेवा में है, भगवान को खुश करने में मेरी खुशी है। तो यही कह रहे हैं हनुमान के बारे में कि आपकी जो भक्ति जो है वो विशुद्ध है, क्योंकि आप अपना सुख जो है भगवान के सुख में ही ढूंढते हैं और कहीं और नहीं ढूंढते हैं। You delighted all his devotees by speaking to the best of the generous lords those words. तो ये कह रहे हैं कि आपने सारे भक्तों का जो है वो को उल्लासित किया जब आपने भगवान से कुछ शब्द कहे, आगे कुछ शब्द कहेंगे कुछ। ये तात्पर्य पढ़ लें। Sri Ramachandra is the most charitable Lord, ready to sacrifice everything for his devotees. The following verse spoken by Hanuman delights the Lord's devotees because it expresses the exclusive wish for the Lord's service and contempt for impersonal liberation. ये कह रहे हैं कि भगवान रामचंद्र जी जो हैं सबसे नमो महावदन्याय, सबसे उदार भगवान है, और वो जो है अपने भक्तों के लिए जो है वो कुछ भी करने को तैयार है, कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार है वो। जैसे दशरथ महाराज, हाँ, कौशल्य माँ की कुछ इच्छा, सॉरी कैकेयी की कुछ इच्छा थी, तो ये सब उनके भक्त हैं, कुछ भी करने को तैयार थे वो उनके लिए। उनके पिताजी ने वचन दिया था कैकेयी माँ को, कैकेयी ने उस वचन को मांगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। श्री रामचंद्र इज द मोस्ट चैरिटेबल लॉर्ड, रेडी टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर हिज डिवोटीज। तो उनके भक्तों के लिए इस केस वजह से बता रहा हूँ, या कैकेयी के लिए जो है, कैकेयी का नाम नहीं है, उनके लिए भी सब कुछ बलिदान करने के लिए वो तैयार थे।
और फिर हनुमान जो है, हनुमान ने एक श्लोक कहा है जो भगवान को बहुत ही पसंद है। फॉलोइंग वाज स्पोकन बाय हनुमान डिलाइट्स द लॉर्ड्स डिवोटीज। भगवान को ही नहीं, भगवान के भक्तों को भी पसंद है, क्योंकि वो जो है इस श्लोक का जो संकल्प, ये जो है उद्देश्य यही है कि भगवान की सेवा की विज्ञप्ति है, भगवान की सेवा की विज्ञप्ति है। और बाकी अन्य मोक्ष लघु कृता, मोक्ष को भी तिरस्कार करते हुए एकमात्र भगवान की सेवा की अभिलाषी है वो श्लोक। और ये अवहेलना करते हुए, मोक्ष की अवहेलना करते हुए, उसको तुच्छ बताते हुए भगवान की सेवा की विज्ञप्ति का एक श्लोक है जो हनुमान को, हनुमान के भक्तों को बहुत पसंद है। भावबंध छिद्दे तस्यै स्पृहयामि न मुक्तये भवान प्रभुर अहम दास इति यत्र विलुप्यते। जी मैं मांग रहा हूँ, सॉरी, गो अहेड। Even though liberation destroys the bondage of material existence, I have no desire for liberation in which I would forget that you are the master and I am your servant. Go ahead, read the purport. The source of this famous verse is unknown. In Sri Bhakti Rasamrit Sindhu 1.2.49, Srila Rupa Goswami cites it merely as Prasiddham Sri Hanumad Vakyam, a well-known statement by Hanuman. हाँ, तो ये श्लोक जो है, क्योंकि ये नारदा कह रहे हैं कि एक श्लोक जो है जो भगवान को बहुत प्रिय है, भगवान के भक्तों को बहुत प्रिय है। हाँ, तो ये श्लोक को वो उद्धृत कर रहे हैं। भावबंध छिद्दे तस्यै प्रहयामि न मुक्तये भवान प्रभुर अहम दास इति यत्र विलुप्यते। कह रहे हैं इवन दो लिबरेशन डिस्ट्रॉयज का, हालांकि ये जो भाव बंधन को छिन्न भिन्न कर देता, छिद्यते मोक्ष कर देता है, लेकिन मेरी कोई अभिलाषा नहीं है मोक्ष की। ऐसा मोक्ष जिसमें मैं आपको भूल जाऊं, उसका क्या करना है। और ये मैं भूल जाऊं कि आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूं, वैसा मोक्ष यद्यपि कभी भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए, कदापि नहीं चाहिए। तो जैसे हम सुनते भी हैं शास्त्रों में, भागवतम में है ये कि मोक्ष जो है, मोक्ष की परिभाषा जो है ये नहीं है कि भाव बंधन से विमुक्त होना। मोक्ष की परिभाषा ये है कि अपने स्वरूप में व्यवस्थित रहना। और स्वरूप क्या है जीवात्मा का? जीवेर स्वरूप हो या कृष्णेर नित्यदास। तो जब वो जीवात्मा जो है, जब वास्तविकता में अपने स्वरूप में व्यवस्थित है, तो वो मोक्ष के आधार तल पर है, इज लिबरेटेड। जैसे हम सुनते भी, इहा यश्य हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा। तो हालांकि वो इस भौतिक संसार में भी क्यों न हो, लेकिन वो विमुक्त है। इहा यश्य हरेर दास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलश्वापी अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। तो हालांकि वो इस धराधाम में है, लेकिन क्योंकि वो भगवान का दास जो अपने कर्मणा मनसा गिरा से भगवान की सेवा करता है, तो वो जीवन मुक्त है, वो है मुक्त। तो ये कह रहे हैं प्रहलाद, मुझे ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए कि मैं आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। जैसे प्रहलाद ने कहा, नरसिंह भगवान से हमारा और कोई संबंध नहीं है, बस यही है मेरा स्वरूप, मेरी उपाधि यही है और यही मेरी इच्छा है, ये मैं चाहता हूँ। तो ये हनुमान कह रहे हैं। अब जो है, अब हनुमान जो है, अब नारद ने जो गुणगान उनका किया, तो उनका विरोध जो है हनुमान करेंगे अब आगे से। परीक्षित महाराज जो अपनी माँ से सब बता रहे हैं। और करेंगे, और फिर आगे जो है फिर पांडवों को वो इनके करेंगे हनुमान। go ahead. Sri Parikshit said, Hanuman was now burning in a fire of separation from his master, the Supreme Lord,
And the fuel of hearing about the special mercy of Lord's lotus feet had brought that fire to a blaze. For a while he cried sorrowfully, and then, calmed by the sage, he spoke. तो ये जो है, अब कह रहे हैं परीक्षित महाराज अपनी माँ से कह रहे हैं, तो हनुमान जैसे हम समझ रहे हैं, हनुमान जो है ये विप्रलंब भाव में, विरह के भाव में जो है वो तप रहे हैं, अपने स्वामी के विरह के भाव में वो तप रहे हैं। और जो जो अब जो ये भगवान के चरण कमलों की जो विशेष कृपा की जो नारद मुनि बात कर रहे हैं कि उनको प्राप्त है, उनके ध्वज हैं, राइट, उनके सेवक हैं, उनके छत्री हैं, उनके ये हैं, उनके वो हैं, तो ये सब जो है जिस नाना तरह की सेवाएं वो करते थे, तो वो उनकी याद दिला रहे हैं एक तरह से नारद मुनि, ये सब कहकर, इस तरह गुणगान करके। तो वो जो आग जो है, एक तरह से एक जो विरह पे जो आग जो है वो एक ज्वालामुखी की तरह जो है वो भड़क उठी है, तो ऐसा कह रहे हैं, इट हैज टर्न इनटू अ फायर ऑफ अ ब्लेज, फायर टू अ ब्लेज। तो ये नारदा का वर्णन जो है ये सब भगवान के बारे में है, और भगवान की कृपा उनके ऊपर किस तरह हुई है, ये सब सुन के जो है उनकी विरह की भावनाएं जो हैं दुगनी चौगनी हो जाती हैं, और एक ज्वालामुखी की तरह वो आग भड़क उठती है। और कई समय तक तो हनुमान जो है जस्ट मतलब विरह में जो है वो रो रहे हैं, और फिर जो है अपने आप को संभालते हैं, और नारद मुनि जो है उनको संभालते हैं। नारद मुनि जो है कुछ शब्द बोलते हैं जिनसे जो है थोड़ा हनुमान थोड़ा संभलते हैं। ओ बट गो अहेड। As dry rewood kindles quickly, Hanuman's ecstatic pangs of separation at once increased when he heard the Lord's special glories, especially the accounts of how the Lord had mercifully engaged him in personal service. Narad was able to console him with soothing words, and after crying for some time, Hanuman regained his composure. तो ये कह रहे हैं कि जैसे वो लकड़ी होती है, लकड़ी के अंदर जो है खास करके अगर वो सूखी हो लकड़ी, तो वो जो है आग पकड़ती है बहुत जल्दी, चिंगारी पकड़ती है, आग पकड़ती है। एज ड्राई रेडवुड किंडल्स क्विकली, हनुमान, तो हनुमान में वो जो विरह की आग जो है अंदर है वो। और जब वो सुनते हैं, जब नारदा ने इस तरह उनका, मैंने जैसे बताया, नाना तरह से उनका गुणगान किया, तो वो सारी सेवाएं जैसे हम लोग देख रहे हैं मेमोरीज ऑफ प्रभुपाद में, श्याम सुंदर प्रभु, राइट, श्याम सुंदर प्रभु, वो कई बार उन्होंने बताया उस मेमोरीज में कि मतलब प्रभुपाद के साथ रहना मतलब वो उसके सामने कुछ है ही नहीं। और जब प्रभुपाद थे और मैं था, तो मैं, मेरी हर कोशिश यही थी कि जितना हो सके मैं प्रभुपाद के पास सानिध्य में मैं रहूं, क्योंकि उनके सानिध्य में जैसे वो बता रहे थे शांति, उल्लास, सेवाएं, रोमांच, क्या नहीं था। हर दिन कुछ जैसे चित्र चित्र नव नव कुछ, आज क्या होगा पता नहीं, प्रभुपाद क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, आज क्या करवाएंगे, आइडिया नहीं कोई। तो विसा, तो हमने अभी हाल ही में देखा श्याम सुंदर प्रभु किस तरह जो है वो भावुक हो रहे थे, वो सब चीजें को याद कर रहे थे, भावुक हो रहे थे। इसी तरह यहाँ पर जो है जब नारदा ने सब चीजें कही हनुमान से, तो उनको वो सब जो है वो ट्रांसपोर्टेड बैक। तो एक तरह से वो जो है, जैसे हम सुनते हैं श्रवण से जो है एक व्यक्ति जो है देश काल ये सब को चीरते हुए कहीं भी वो पहुंच सकता है, लाइक दैट। तो ये हनुमान जो है वो उस वापिस अवस्था में जो है वो चले जाते हैं जब ये सब सुनने के उपरांत। और वो किस तरह से नाना तरह की सेवाएं करते थे भगवान की, उनको अवसर था, और अब वो नहीं है। हालांकि वो अर्च विग्रह की सेवाएं कर रहे हैं वो सब उसी तरह, बट वो सिर्फ एक एक एस्पेक्ट है अर्च विग्रह, बट भगवान ने उनको अलग अलग तरह से युक्त किया था, लगता है। वो उनको वो याद कर रहे हैं, और जब वो याद कर रहे हैं तो ये जो विरह की जो 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 अग्नि जो है वो भड़क उठती है वो ज्वालामुखी की तरह। और वो याद करें कि भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कि मुझे नाना तरह की सेवा में भगवान ने नियुक्त किया। और नारदा ने जो है somehow उनको जो है सांत्वना दी, यू नो
सौम्य वचनों से उनको सांत्वना दी। और फिर जो है, और हनुमान जो है कुछ समय तक, ठीक है, तो कुछ समय तक जो है वो वो रोते ही रहे। फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को संभाला, अपने आप को संभाला हनुमान ने। ओके, आई थिंक वी कैन। ओके, लास्ट श्लोक का पढ़ लेते हैं क्योंकि पेज भी खत्म हो जाएगा। 319 तक हम लोग पढ़ लेंगे। गो अहेड। श्री हनुमान सेड, गो अहेड। Sri Hanuman said, O best of sages, why are you doing this to such a wretch, devoid of the lotus feet of Sri Ramachandra? Why do you make me cry by reminding me of how the Lord has neglected me? तो हनुमान कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, मैं साधु नारदा, प्लीज आप क्यों इस तरह, मैं एक अधम हूँ, और इस अधम का इस तरह आप क्यों गुणगान कर रहे हैं? वाई आर यू डूइंग दिस? क्यों कर रहे हैं मेरे साथ इस तरह खिलवाड़? हम्म, जिनके पास भगवान के चरण कमल का संग नहीं है, क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? बता रहे हैं, वाई डू यू मेक मी क्राई? क्यों मुझे रुला रहे हैं, मुझे याद दिला रहे हैं कि भगवान ने किस तरह जो है मुझे यहाँ पर जो है मुझे छोड़ दिया भगवान ने यहाँ पर। क्यों मुझे याद दिला रहे हैं सबके बारे में? ओके, तो इस तरह हनुमान कह रहे हैं। Right. Because Lord, ब्रजवासियों का, yes, सेकंड, लाइक ब्रजवासियों का भाव जो है, या राधा रानी और ये ब्रजवासी जो है वो विरह के अग्नि में जो है वो तप रहे हैं, लाइक दैट। तो इसी तरह हनुमान कह रहे हैं कि क्या है, हाय कृपा, को है। because Lord Ramachandra appears like a human being with two hands and two legs, we would expect his lotus feet to be described by the dual form Padam Bhujayam. पादाम Instead, भुजायम, जाभ्यम अभ्यम है। yeah, Padam Bhujabhyam. Instead of the plural Padam Bhujai. In Sanskrit, plural forms are normally used to indicate more than two, but Hanuman here employs poetic license by using the plural form out of extreme reverence for his Lord. ओके, तो ये जो है anyway, तो ये श्लोक हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन श्लोक में जो है एक शब्द है पादाम भुजई। श्री हनुमान उवाच मुनिवर्य कथम श्रीमद् रामचंद्र पादाम भुजई हीनम रोदस्ये दिनम नैस्थुर्य स्मरणेन माम। तो ये पादाम भुजय शब्द जो है उसकी बातें कर रहे हैं। तो जैसे हम समझते हैं भगवान जो है रामचंद्र जी, चैतन्य महाप्रभु, कृष्णा, इन तीनों के जो खास करके जो है ये रूप जो है ये विशेष रूप हैं, के मानव के रूप में जो है वो मानुषिम तनुम आश्रित लिया है। तो दो दो पैर, दो हाथ, दो आंखें, लाइक दैट, तो ये रूप है। तो ये जो, लेकिन हनुमान जो है पादाम भुजई कह रहे हैं, तो ये सब संस्कृत का बता रहे हैं कि वैसे, क्योंकि वो दो पद कमल हैं उनके, तो पादाम भुजभ्यम बोलना चाहिए। जैसे हम लोग जब भगवान को उठाते हैं, ओम उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ श्री लक्ष्मी नरसिम्हाभ्यम बोलते हैं, लेकिन दो है। तो आई थिंक उसी की बातें हो रही हैं कि दो है, द्विज, संस्कृत ग्रामर है ये। तो ये दो चरण कमल हैं। तो ये हनुमान फिर पादाम बुझई क्यों कह रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि हनुमान जो है, समझते हैं ऑफकोर्स भगवान ये नर के रूप में आए हैं, पादाम भुजभ्यम है, लेकिन अ, भगवान वो जो ऑ एंड रेवरेंस यहाँ पर जो बता रहे हैं कि मतलब भगवान के प्रति उनका जो आदर सम्मान जो है, उस आदर सम्मान के कारण जो है ये इस तरह जो है उपमा वो यूज कर रहे हैं। ये जो हनुमान को छूट है वो कभी है, तो कभी कभी पादाम भुजभ्यम का उपयोग करते हैं, और कभी कभी इस परिपेक्ष में पादाम भुजई कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं वो बता रहे हैं गोपी परम प्रभु। तो हनुमान जो है आदर सम्मान से जो है, गौरव से, बड़े गौरव से जो है भगवान रामचंद्र जी को देख रहे हैं, इसलिए जो है पादाम भुजय शब्द का प्रयोग हो रहा है। गो अहेड, नेक्स्ट वन।
The word hina means not only devoid but intentionally rejected. In the complex transformations of ecstasy, Hanuman lovingly reproaches the Lord Ramachandra for being cruel. Technically, Nashthuryam means hardness of the heart. Aishwarya means हार्डनेस ऑफ द हार्ट, या तो ये जो है ये, या जैसे नहीं ये सब समझ सकते हैं हम, जैसे कभी कभी राधा रानी जो है कृष्ण भगवान को, कृष्णा को, श्याम सुंदर को जो है वो कहती थी, कोसती थी, डांटते थे, जैसे हमारे बोलते हैं गोपियां जो है गालियां देते थे कृष्ण को। तो इसी तरह इस श्लोक में हनुमान जो है संभव भगवान को उस तरह थोड़े मतलब उस भाव में जो है भगवान से वो भगवान के बारे में कह रहे हैं हीनम, ये जो शब्द जो है हीनम शब्द का प्रयोग किया है, तो हीनम का मतलब ये नहीं कि हमारे पास मेरे पास है नहीं कुछ, तो लेकिन हीनम का शब्द यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मतलब जानबूझकर जो है मतलब मुझे जो है मतलब यहाँ पर क्या अ, मेरा परित्याग परित्याग जो है मेरा भगवान ने मेरा कर दिया, छोड़ नहीं दिया मुझे, बट मतलब मैं उन मेरा संग सॉरी उनका संग मुझे नहीं दिया ऐसा नहीं है, बट जानबूझ के जो है मुझे या मेरा परित्याग कर दिया भगवान ने। और ये सब जैसे मैं बता रहा हूँ ये सब विरह कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सटेसी है, तो ये सब जो है विरह के भाव में इस तरह हनुमान जो है भगवान को गाली दे रहे हैं। और एक शब्द जो है बहुत ही निष्ठुर बोलते हैं ना, निष्ठुर मतलब पाषाण का हृदय, हार्डनेस ऑफ द हार्ट, हृदय जो है बहुत ही कठोर है। तो रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि आप इतना कैसे आप निष्ठुर हो सकते हैं मेरे प्रति कि आपने मुझे छोड़ दिया इस तरह। तो ये कह रहे हैं नारदा से कि कहाँ भगवान तो मेरे प्रति कितने कठोर थे, कितने निष्ठुर थे, और मुझे छोड़ दिया यहाँ पर, कहाँ है ये कृपा, इस तरह हनुमान कह रहे हैं। Okay, so I think we'll pause there. I'm sure more can be said, but it's nice. Okay, thank you all for joining. Hare Krishna, please accept my obeisance. Any comments, questions, discussion? I'm here, हमारे पास। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yeah, wonderful. प्रभु जी Yes, जो जो फर्स्ट श्लोका था प्रभु जी, आई रीच्ड होम सो आई वाज जस्ट वेयर वी वर टॉकिंग अबाउट कि हनुमान जी जो हैं वो शरीर के उस लेवल स्तर पर नहीं और पूरा सेवा कर रहे हैं। तो प्रभु जी जस्ट एक थॉट था कि ऐसा जब मैं सुनता भी हूँ तो आई मे बिकम मोर एनकरेज्ड, एंथुजियास्टिक, डिटरमाइंड कि मुझे सेवा करना है, शरीर के स्तर पे नहीं रहना है, आत्मा के स्तर पे रहना है। पर उसमें मुझे ऐसा भी नहीं करना है कि मैं मेरे पूरे माइंड के चंगुल में फंस जाऊं और बिल्कुल बॉडी से बिल्कुल आउट ऑफ टच हो जाएं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इमोशंस। जी इमोशंस बेल्ट अप हो रहे हैं अंदर और उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, माइंड इज जस्ट जंपिंग इन टू रेस्क्यू। हम इमोशंस को फील ही नहीं कर पा रहे, वो सब फिर इमोशनली पूरा चोक हो रहे हैं। सो इन द गाइज ऑफ सर्विस डिसर्विस हो जा रहा है पूरा। तो दैट वाज वन वेरी yeah, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट प्रोची जो मुझे ऐसा थिंकिंग ऑफ। थैंक यू प्रोजी। yeah. जैसे मैंने संक्षेप में कहा उसके बारे में कि या शरीर का ध्यान रखना मतलब ऑब्वियसली जड़ शरीर का और सूक्ष्म शरीर का दोनों का। और अगर हम लोग कुछ जैसे आप बता रहे हैं कुछ हम लोग करने जाएंगे जो हमारे अधिकार से परे है या अति है, तो देन उसके 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 परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे। हेवली कॉन्सिक्वेंसेस विल फॉल सिक, और जो भी होगा होगा कुछ। या जैसे कुछ कुछ ही दिनों पहले ये कंसलेशन गया था, या तो ये स्पिरिचुअल बाईपास जो कृष्णला माता जी बात करती है कई बार, तो वो हम नहीं कर सकते हैं। तो ये फोर्सेस जो हैं, इमोशनल फोर्सेस जो हैं, या ये काफी स्ट्रांग है, ऑफ कोर्स उनको मतलब फिर चैनल करना चाहिए, बट दे आर वेरी स्ट्रांग। या इस हद तक स्ट्रांग रहते हैं कि कभी कभी या डिवोटीज को आत्महत्या की तरफ भी ले जाते हैं, लगता है भक्त भक्त भी। तो जैसे आप बता रहे हैं मतलब इनके साथ खेलना नहीं चाहिए।
इनको समझना चाहिए ठीक से ढंग से, या और उसका कुछ उपचार करना चाहिए। ये नहीं कि बस हाँ चैंटिंग हियरिंग कर रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम क्या है, तो कर रहे होते लेकिन ऐसी भावनाएं क्यों है अभी, कुछ गड़बड़ है, कुछ एड्रेस करो उन चीजों में। सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये जो फोर्सेस जो है इतने स्ट्रांग है। और एक एक बहन तो कर चुकी है आत्महत्या, और दूसरी करने को तैयार है, लगता है कोई इतना इतना प्रबल है फोर्स। ये सब इनको इनका समाधान, तो सबसे पहले तो भाई जैसे प्रभुपाद कहते हैं, फर्स्ट बी कॉन्शियस देन बी कृष्णा कॉन्शियस। सबसे पहले तो हम सचेत हों, हम अवेयर हों कि चल क्या रहा है अंदर, चल क्या रहा है अंदर, हमारे अंदर भावनाओं के स्तर पर, या मतलब हर हर स्तर पर, शरीर में फिजिकली, फिर सटली इमोशनली व्हाट्स हैपनिंग। और जैसे माता जी ने सिखाया हमें, और ये जो भावनाएं जो हैं ये दे आर मैसेंजर्स, ये कुछ इंगित कर रहे हैं, तो ये हमारे मित्र हैं। तो इनको जैसे आंख बंद करके, आंख बंद कर लेंगे तो चले जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो बार बार चीजें आती हैं फिर, जिन चीजों को हम देखते नहीं है फिर वो बार बार वो आएगा सामने, और कृष्णा नॉक करेंगे कि इसका क्या है, इसका क्या है। तो ऐसे ही शरीर का भी, सूक्ष्म शरीर का भी क्या। तो एक भक्त जैसा बता रही है अवेयर, मतलब वो अवेयर है, हर हर प्लेटफॉर्म पे अवेयर है वो, मतलब वो सचेत है, वो जागृत है। प्रभु जी, जस्ट नॉट टू डाइग्रेस एनी फर्दर, प्रभु जी जो फर्स्ट चैप्टर भगवत गीता में अर्जुन जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ही इज एक्चुअली एक्सप्रेसिंग, मेरे को ऐसा हो रहा है मुझे, ही वो जो प्रभु जी एक डिटेल सेपरेटली डिस्कस करेंगे, मुझे जो 6 टाइप्स ऑफ डिफेंसेस जो हमने सीखे, जिसमें हम हमारे इमोशंस को फील ही नहीं करते, तो वन इज हम्म, ब्लेमिंग, वन इज डिस्ट्रैक्टिंग आवर सेल्फ विथ एनीथिंग और एनी सब्सटेंसेस। तो उस चक्कर में मुझे हम फील ही नहीं कर पाते, जबकि अर्जुन वाज एक्चुअली फीलिंग कि मेरे साथ क्या हो रहा है, रादर देन ब्लेमिंग एनीबडी। ही नेवर ब्लेम्ड दुर्योधन और धृतराष्ट्र और एनीबडी, ही वाज जस्ट सेइंग कि दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग, ये मेरे साथ हो रहा है अभी। तो या बस, थैंक यू। अर्जुन इज अ ग्रेट एग्जाम्पल। और वो शरीर में, जैसे माता जी बताती हैं, कृष्ण माता जी, या शरीर में बता रहे हैं उसके लक्षण क्या है, ये सब इसके लक्षण है ये। या भय के लक्षण प्रॉपर दिखते हैं, भय, ये जो रोमांच कंपा सूत्रम, ये दोनों होते हैं, तो भय में भी होता है और एक्सटेसिव में भी होता है, लेकिन ये जो है ये मटेरियल है, ये स्पिरिचुअल नहीं है। या, गुड। और कुछ समझ में आ रहा है डिवोटीज को सब कुछ ये सब, तो बता बता। The narration we hear in Bhagavatam, हम्म। the Ujjain Brahmana, हम्म। अवंतिका, अवंती ब्राह्मण। हम्म। Mantika Brahmana. हम्म। That his realization, something like this, what the Vamira Prabhu is saying. हम्म। And he undergoes through so many situations where people are insulting him and his money is gone and then all his wealth is gone. And finally he discovers that it is all in the mind, kind of. Then he becomes peaceful. हम्म। And then he sees that, I mean, that the related verse, Tatyanukampam Sarikshimanu. So, Bhagavatam also gives a solution in a way to this kind of emotions and situations. If we have the right understanding at a higher level, that it is either my karma or it is the mercy of Krishna. And in any case, the, the, the supreme occupation should be
Dharmasya hi apavargasya. Bhagavan, to serve the Lord. So, and like here he is saying in the purport, we were reading just now, that by being attached to the service, by being absorbed in it, then you feel protected, then you feel that sense of protection. For all these things, then, yeah, you'll then, from all these things, you'll feel some kavacham, kind of it is. Shields you from this kind of fears and emotions. या साथ साथ में चलता है ये सब, जैसे लोग बता रहे हैं। या तो वी सर्व विद आवर बैगेज, जो भी है। ऐसा नहीं कि ये सब ओके करेंगे बाद में, तो साथ साथ में होता है ये आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार, सेवाएं और ये अनर्थों का विमोचन, ये सब साथ साथ में बड़ा ही मिस्टिकल प्रोसेस है ये। होता है। Okay, all right. So January 1st, tomorrow, we'll gather together. Hare Krishna. Please accept my obeisances. Stop the recording and then बाद में इसका जो भी करना है कर सकते हैं।